Hello students, Berry's 5th स्टैंडर्ड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश ड्रामा आ मैरी क्रिसमस। आज हम देखेंगे हिंदी में इंग्लिश एनिमेटेड करके, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए। Characters: Narrator Meg, Margaret, the eldest daughter of the March family. Joe, Josephine, the second daughter. Beth, Elizabeth, the third daughter. Amy, the youngest daughter. Mrs. March, the girl's mother. Hannah, the help at the March household. A poor woman and her children, neighbors of the March family. Joe was the first one to wake up on Christmas morning. For a moment, she felt disappointed as there were no goodies. Then she remembered her mother's promise and, slipping her hand under her pillow, drew out a little crimson-colored book. Merry Christmas, Meg! Look under your pillow. Meg, Beth, and Amy each find a book, green, dove, and blue colored respectively, with a few words written by their mother. Girls, Mother wants us to read and love these books, and we must begin at once. We used to be faithful about it, but since Father went away and this war trouble has disturbed us, we have been neglecting many things. You can do as you please, but I shall keep my book on the table here and read a little every morning as soon as I wake up. Meg begins to read as Joe puts her arm around her and, leaning cheek to cheek, starts to read with her. Look how good Meg is. Come, Amy, let us read our books. I'll help you with the difficult words and they'll explain the things we don't understand. I'm glad mine is blue. Half an hour later, Meg and Joe come downstairs to thank their mother for the gifts. Where is Mother, Hannah? Goodness only knows. Some poor creature came begging and your mother went straight off to see what was needed. She will be back soon, I think, so please fry your cakes and get everything ready. Why, where is Amy's bottle of cologne? She took it out a minute ago and went off to put a ribbon on it. How nice my handkerchiefs look, don't they? Hannah washed and ironed them for me, and I stitched them all myself. She's put Mother on them instead of M. March. How funny! Isn't that right? I thought it was better to mark Mother because Meg's initials are MM too. I don't want anyone to use these except Mother. It's all right, dear, and a very pretty idea. It will please her very much, I know. A noise is heard at the door. I think it's Mother. Hide the basket, quick! Amy enters. Where have you been and what are you hiding behind you? Don't laugh at me, Joe. I didn't want anyone to know till the time was right. I wanted to change the little bottle of cologne for a bigger one, and I gave all my money to get it. I'm trying not to be selfish anymore. Amy showed them the big flask of cologne. Her sisters were so proud of her that Meg hugged her immediately and Beth got her a beautiful rose to decorate the bottle. A noise is heard at the door again. The girls hide the basket under the sofa and sit at the breakfast table. Merry Christmas, Mother. Thank you for our books. Merry Christmas, dear ones. I want to say something before we sit down. Not far away from here stays a poor woman with a little newborn baby. 6 children are all huddled into one bed to keep warm, for they have no fire. They have nothing to eat. The eldest boy came to tell me they were suffering from hunger and cold. My girls, will you give them your breakfast as a Christmas present? The girls were very hungry as they had waited for breakfast for nearly an hour. For a while, everyone was silent. I'm so glad you came back before we began to eat.
May I help you carry the things to the poor little children? I shall take the cream and the muffins. I thought you'd do it. You shall all come along with me to help the family. When we return, we will have bread and milk for breakfast and make it up at dinner time. So they packed their breakfast and set out to help the poor, starving family. When they reached the place, they saw a poor, bare, miserable room with broken windows, no fire, and ragged bedclothes. They saw the sick mother, a wailing baby, and a group of pale and hungry children, all cuddled under one old quilt, trying to keep themselves warm. The good angels have come to us. Funny angels in hoods and mittens. The family began to help their neighbors immediately. Hannah, who had carried wood, made a fire and blocked the broken window panes with old hats and her own cloak. Mrs. March gave the mother tea and comforted her while she dressed the little baby. The girls, in the meantime, spread the table, set the children around the fire, and fed them like they were hungry birds, laughing and talking to them. This is the angel children. The girls had never been called angel children before, and it made them very happy to think that the children thought so. That was a very happy breakfast, though the girls didn't get any of it. When they went away, leaving the comforted family behind, there wasn't anyone happier than the hungry little girls who gave away their breakfast and contented themselves with bread and milk on Christmas morning. That's loving our neighbor better than ourselves, and I like it. चलिए इसी ड्रामा को हिंदी में देख लेते हैं। पहले कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ये नरेटर और बाद में ये मेग है, मार्गरेट, ये सबसे बड़ी लड़की मार्च फैमिली की है। उसके बाद देखते हैं सेकंड डॉटर, ये जो मतलब जोसेफिन द सेकंड डॉटर, ये है इस घर की। ये थर्ड मतलब बेथ, जिसका फुल नेम है एलिजाबेथ। फोर्थ सबसे छोटी डॉटर एमी है, ये मम्मा है मिसेस मार्च, लड़कियों की 4 लड़कियों की मम्मी है ये। और ये उनके घर में काम करने वाली हुना। अब ये देखिए उनके नेबर जो बहुत ही पुअर है, वो उनके चिल्ड्रन के साथ यहाँ पे बैठे हुए 6 पुअर बच्चे हैं ये सबसे पहले उठ जाती है क्रिसमस मॉर्निंग के दिन। और उठने के बाद वो बहुत अपने आप को डिसअपॉइंट मिस करती है, कुछ भी तो नया नहीं है, ऐसे वो सोचने लग जाती है। फिर उसे याद आता है कि मम्मा ने प्रॉमिस किया था। देखती हूँ और पिलो के नीचे वो हाथ लगा के देखती है तो उसे एक नोटबुक मिल जाती है, कलर्ड नोटबुक। वो खोल के देखती, कुछ तो लिखा है। वो जल्दी जल्दी मेग मैरी क्रिसमस, मेग, बेथ, एमी सभी उड़ जाते हैं और अपने पिलो के नीचे हाथ डाल के देखते हैं तो ग्रीन कलर का डाउ मतलब वाइट कलर का और ब्लू, ऐसे अलग अलग कलर के उन्हें नोटबुक मिल जाते हैं। और वो बुक के ऊपर कुछ तो मम्मा ने लिखा होता है। चारों लड़कियां मम्मा ने दिया हुआ जो गिफ्ट है वो देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। ओ वाह, आज हमें मम्मी ने बुक्स दिए हैं रीड करने के लिए। वाह, हम बहुत मम्मी के साथ फेथफुल रहेंगे। पापा जब से हमें छोड़ के चले गए हैं, लड़ाई के कारण, हमारे जो वॉर है उसके कारण हमारी फैमिली जो डिस्टर्ब हो गई है, बहुत सी चीज़ें हम निगलेक्ट करने लगे हैं। लेकिन मम्मा एटलीस्ट आपने ये बुक देखी हमको बहुत कुछ कर दिया है। मैं तो ये बुक मेरे यहाँ सामने टेबल पे ही रखूँगी। दोनों बहनें एक दूसरे को चिपक के प्यार से बोलती है। मेग ने तो रीड करना भी शुरू कर दिया है और जो उसकी प्यारी बहन अपने आर्म्स को उसके आजू बाजू में डालकर अपनी जो गाल है वो उसके सर पर रख देती है, प्यार से सहलाने लगती है। और ये देख के वो बोले मेग कितनी अच्छी है, एमी तुम भी आ जाओ,
हम ये बुक रीड करेंगे और मैं तुम्हें हेल्प करूँगी कुछ अगर हार्ड वर्ड्स होंगे तो। बड़ी बहन देखिए छोटी बहन को कैसे बोल रही है। हाँ, अगर हमें कुछ अंडरस्टैंड नहीं होगा तो अरे माँ देखो मेरा बुक तो ब्लू कलर का है। आधे घंटे के बाद मेघ और जो है वो नीचे उतरते हैं मम्मी को थैंक्स कहने के लिए और गिफ्ट भी देते, मतलब उनको भी गिफ्ट देना होता है और मम्मी से गिफ्ट मिला है वो भी। तो हना को वो पूछते हैं कि मम्मा कहाँ है, और हना बोलती है हाँ क्या बताऊँ तुम्हें, तुम्हारी मम्मी को कुछ पुअर लोग आ गए थे मिलने के लिए, वो बोल रहे थे हमें बहुत ज़रूरत है कुछ सामान की, और तुम्हारी मम्मी तो तुम्हें पता है किसी को कुछ चाहिए तो तुरंत दौड़ के भाग जाती है और दे देती है। ये देखो। हाँ तो मम्मा जल्दी घर नहीं आएगी, दोनों तीनों बच्चियाँ उन्हें पूछती है। तो इसमें वो जितने मम्मी के लिए गिफ्ट रखे हैं वो देखते हैं और बोलते अरे एमी का गिफ्ट तो इसमें है ही नहीं, एमी ने तो मम्मी के लिए जो है ना परफ्यूम रखा था वो तो दिखता ही नहीं है, शायद से उसने कुछ अलग करने के लिए रिबन बांधने के लिए लेके गई है। ये देखो ये मैंने रुमाल रेडी करके रखा है। हना ने बहुत अच्छे से इसे वॉश करके आयरन किया है और देखो मैंने उसके ऊपर स्टिच भी किया है, मेरे हाथों से किया है। और दूसरी बहन उसे उठा के बोलती है एम फॉर मार्च होता है, आपने तो मदर लिख दिया है। ओह हाउ फनी। दोनों बहनों की बातें चालू है। तो ये राइट नहीं है क्या, मम्मी मेरे लिए सबसे प्रेसियस है, मेघ एम और मदर का एम, तो दोनों के लिए तो ये होती है ना। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा दिया हुआ चीज़ मम्मी के लिए ही है तो मम्मी ने यूज़ करना चाहिए। तीनों बहनें खड़ी हो जाती हैं। हाँ तुम्हारी आइडिया तो बहुत सुंदर है, मम्मी ज़रूर इससे खुश हो जाएगी, मुझे पता है। ऐसे बातें उनकी चालू है। तभी दरवाजे पे टक 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 आवाज़ ज़ोर से आने लगती है। ओह मम्मा के लिए गिफ्ट है, छुपाओ 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 छुपाओ, जल्दी जल्दी छुपाओ। और तीनों उठा के वो गिफ्ट रख, अरे ये देखियो एमी तभी अंदर आ जाती है। एमी ने पीछे कुछ तो छुपा के रखा है। देखो एमी तुमने पीछे क्या छुपा के रखा है। और दूसरी बहन उसे देख के हंस रही है। तो एमी बोलती है जो बिल्कुल हंसो मत, मुझे पता है तुम लोग हंस रहे हो, मैं तो मम्मी के लिए बहुत सारा फ्रेगनेंस ढूंढने के लिए गई थी और मम्मी को मैं वही देने वाली हूँ, मेरी सारे पैसे गए तो भी चलेगा, मम्मी को मैं दे दूँगी ये वाला सारा फ्रेगनेंस, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। और ऐसे करके वो पूरी बॉटल जो है परफ्यूम की भरी हुई वो अपनी बहनों को दिखा देती है। तीनों बहनें देखती है, बहुत प्राउड फील करती है और मेघ तभी झुककर उसे अपने गले लगा लेती है। और दूसरी जो बहन है वो उसे मतलब बेत जो है वो उसे ब्यूटीफुल रोजेस डेकोरेट करने के लिए दे देती है कि इसके अंदर बॉटल को रखो। ए देखो टक 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 टक। दरवाजे पे फिर से आवाज़ आई। गर्ल्स ने जल्दी से बास्केट गिफ्ट की छुपा के रख दी और जल्दी से जाके ब्रेकफास्ट के टेबल पे जाके बैठ गए, ये सोच के कि मम्मा आएगी। मम्मा मैरी क्रिसमस, थैंक यू हमें बुक्स देने के लिए। सारी चारों लड़कियां एकत्रित बोल के उठी। मामा ने बोला मैरी क्रिसमस, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है यहाँ पे बैठने से पहले। देखो हमारे पड़ोस में एक दुखी औरत है जिसके पास न्यू बॉर्न बेबी है और उसके खुद के 6 बच्चे हैं। तुम्हें पता है बहुत तेज़ ठंडी है, उनके पास कंबल भी नहीं है ओढ़ने के लिए और उनके घर में फायर भी नहीं है। पुअर वुमन, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। बड़ा वाला बच्चा जब मुझे बताया कि वो बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है और ठंडी के कारण उसे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो गर्ल्स क्या तुम्हारा ब्रेकफास्ट एज ए क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर उन्हें देना चाहोगी? लड़कियों को बहुत भूख लगी थी। लड़कियों ने मम्मी की तरफ देखा। आधे घंटे से मम्मी का वेट कर रहे हैं, बहुत भूख लगी है। फिर भी सब शांत हो गए थे मम्मी की बात सुनकर। बाद में बड़ी लड़की बोलती है मुझे तो अच्छा लगेगा,
मैं खाना खाने के बाद पहले ही उनसे मिलना चाहती हूँ और ये सारी चीज़ें आपको कैरी करने के लिए भी हेल्प करूँगी। चलिए पुअर बच्चे कहाँ है? और एमी बोलती है कि मैं क्रीम और मफ़िन्स उठा लेती हूँ, बाकी की चीज़ें आप। लड़कियों की मम्मी बोलती है मुझे पता था तुम यही सब करोगे, तो चलो नेकी और पूछ पूछ क्यों, हम जल्दी से जाते हैं और वापस आने के बाद हम भी ब्रेड और मिल्क थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद में डिनर मैं रेडी कर दूँगी। चलो बेचो ये जल्दी जल्दी पैक करो। और वो पुअर जो बहुत भूखे प्यासी फैमिली है उन्हें देने चलते हैं और वो जल्दी जल्दी सब पैक करके उस पुअर औरत के घर में जाते हैं। बहुत पुअर कंडीशन होती है, न्यू बॉर्न बेबी के साथ उसकी मामा वो भी बीमार सी लग रही है और वो 6 बच्चे अपने आप को पास पास एक दूसरे से लपेट के बैठे हैं। उनके घर में ढंग से बैठने के लिए कॉट भी नहीं है। ओ नो, वो बेबी, वो मामा, वो बच्चे, इनके चेहरे भूख से बहुत तिलमिला रहे थे। उनको ना गर्मी थी ना भूख, ये सब चीज़ें उनकी बहुत दया वाली लग रही थी। क्या करे? तभी मम्मा बोली ओह एंजल्स आई है हमारे घर में। लड़कियां बोलती है एंजल्स? हाँ एंजल्स आई है आप लोगों के लिए खाना लेके। और तभी वो टेबल सजा देती है ब्रेकफास्ट का भर के और हना जो है वो लकड़ियाँ लेके आती है, थोड़ा फायर वहाँ पे जलाती है ताकि घर में जो गर्मी का माहौल थोड़ा सा पैदा हो सके। जो खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे वहाँ पे वो कुछ कपड़ा ज्वाइन करके वहाँ से जो हवा आ रही थी उसे वो ठीक करने की कोशिश कर रही थी। मिसेस मार्च ने छोटे बच्चे को अपने हाथ में लेके सुलाने की कोशिश की और तभी मम्मी को चाय दे दिया है। मम्मी बेचारी टेकिंग थोड़ा सा रेस्ट ले रही है। बाकी के 6 जो बच्चे हैं उन्हें दूसरी गर्ल्स ने अपनी अच्छे से बिठा के ब्रेकफास्ट शुरू कर दिया है। सब एक दूसरे के साथ खुशी खुशी खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा पेट में खाना जाते ही बच्चे बोल रहे थे एंजल चिल्ड्रन, तुम सिस्टर्स जो हो आप एंजल की तरह हमारी ज़िंदगी में आई हो। और वो खाना खा रहे थे। उनको वो ब्रेकफास्ट खाते हुए देखकर ये चारों लड़कियां, उन्हें जो भूख लगी थी वो भूख प्यास पूरी की पूरी ख़त्म हो गई थी और उनको भूखे प्यासे लोगों को खाना खाते हुए देख के इनको वो हैप्पीनेस फील हो रहा था कि जो उन्हें आज तक कभी महसूस नहीं हुआ। जब जाने की बारी आई, अंतिम समय आया, वो निकलने लगे, लेकिन निकलते समय मन ही मन में कंफर्टेबल फील कर रहे थे कि आज हमने ब्रेकफास्ट हमने नहीं खाया, लेकिन सच में जिसको ज़्यादा ज़रूरत थी आज उनको दे दिया। घर आते ही उन्होंने मिल्क और मिल्क के साथ थोड़ा ब्रेड लेके ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे उनकी क्रिसमस मॉर्निंग तब हुई थी। पहली बार उन्होंने गिफ्ट जो है वो पुअर लोगों के लिए बनाए थे, देने थे और कर दिया था। ऐसे सारे आप भी आपके नेबर्स को कीजिए। तो मेरी स्टोरी आपको कैसे लगी, पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही देखते रहिए।